ह्यूमन आई का कलरफुल वर्ड इसमें लिखें, पहले बात करेंगे ह्यूमन आई की, तो लिखिएगा द ह्यूमन आई। हमारे सिलेबस में ह्यूमन आई का कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन मतलब उसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स, उसका एक डायग्राम और उनका सबका क्या क्या फंक्शन है वो करना है। थोड़ा सा ये जो शुरुआत वाला पोर्शन है थोड़ा सा ऐसा लगेगा जैसे हम बायो कर रहे हैं, लेकिन है फिजिक्स ही, ठीक है। हमारे तो फिजिक्स वाले सर ने क्वेश्चंस लिखवाए, ऑलमोस्ट 3 से 4 क्वेश्चन का एक ही आंसर। एक ही आंसर हाँ भाई, रिफ्लेक्शन नहीं वो उसका वो जो है ऐसे जो लगता है पता नहीं क्या था ये लैम्डा, हाँ रिफ्रैक्शन कुछ ऐसे करके सबका एक ही आंसर। सबका एक ही आंसर है, तो सही बताया। वेवलेंथ के हाँ वेवलेंथ नाम था क्या, वेवलेंथ होती है लाइट में, स्कैटर बिल्कुल यही। चलिए द ह्यूमन आई, इसमें लिखेंगे द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई आर पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई आर, द ह्यूमन आई के कुछ जो मेन पार्ट्स हैं क्या क्या हैं, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, ciliary muscles, eye lens, retina and optic nerve. रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, ये होता है। अब इसमें लिखें फर्स्ट वन करके लिखिएगा, द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया, the front part of the eye is called cornea. Full stop. It is made of a transparent substance and it is bulging outwards. Of a transparent substance and it is bulging outwards. The light coming from objects enters the eye through cornea. The eye through cornea. ये तो कॉर्निया के लिए था। नेक्स्ट लिखें
behind the cornea is the iris. Just behind the cornea is the iris. Full stop. Iris is a flat, colored, ring-shaped membrane. Iris is a flat, colored, ring-shaped membrane behind the cornea of the eye. Next again. There is a hole in the middle of the iris. There is a hole in the middle of the iris, which is called pupil of the eye. Which is called pupil of the eye. The pupil appears black because no light is reflected from it. No light is reflected from it. अच्छा, तो ये आइरिस हो गया, आइरिस को इंटरलाइन करें आप, कॉर्निया हो गया और ये प्यूपिल हो गया. उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आई लेंस. The eye lens is a convex lens made of a made of a transparent, soft and flexible material. Flexible material like a jelly made of proteins.
प्रोटीन्स। उसके बाद लिखते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स, SUSPENSORY, सस्पेंसरी ligaments. Holds suspensory ligaments, holds the islands. Suspensory ligaments holds the islands in its position. One end of suspensory ligaments is attached to the islands suspensory ligaments is attached to the islands their other end is attached to ciliary muscles. And their other end is attached to ciliary muscles. Ciliary muscles next लिखेंगे ciliary muscles change the thickness of islands while focusing. Islands by focusing. अब जरा इसका ना डायग्राम बना रहा हूँ मैं आई का, वो देख लीजिए। एक लाइट का डाउट है। उसकी डायग्राम बना दो इसका, ये कंप्लीट करके फिर
हाँ जी, ये पूरा आई का डायग्राम हो गया। अभी इसमें 2-4 डेफिनेशन जो आपको भी बना लीजिए। डायग्राम बना लीजिए, ये 1 मिनट तो आ होगी।
फिलहाल सीरियल मसल्स का हमने लिख लिया था, अभी सारा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद और नोट करें। The screen on which the image is formed in the eye is called retina. Is called retina. The retina is a delicate membrane having a large number of The retina is a delicate membrane having a large number of light-sensitive cells called rods and cones. Called rods and cones. बस इतना ही रॉड्स एंड कोन्स की डेफिनेशन में अलग से आपको दिखाऊंगा, इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इसको। नेक्स्ट लिखिएगा, एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना at the junction of the optic nerve and retina, there are no light sensitive cells. There are no light sensitive cells. The rods and cones. Due to which no vision is possible at that spot. Possible that spot. This is called blind spot. Next लिखिएगा, blind spot को underline करिए। Next लिखिएगा,
the space between cornea and eye lens is filled with a watery liquid called aqueous humor. फर्स्ट नंबर को अंडरलाइन करिए। नेक्स्ट देखिएगा, स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना is filled with a transparent jelly-like substance jelly-like substance called vitreous humor, which supports the back of the eye. Called vitreous humor. Which supports the back of the eye. ठीक है जी, अब जरा समझ लीजिए सारी चीज़ क्या क्या है इसमें। द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आई आर कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, आई लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व। ठीक है, देखिए द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई इज कॉल्ड कॉर्निया। तो ये जो आई है ना, आई जो बिल्कुल आगे से थोड़ी सी बल्जिंग आउटवर्ड्स बाहर को निकली हुई दिखाई देती है, ये जो बिल्कुल शुरुआत वाला पोर्शन है, इसको हम कॉर्निया बोल देते हैं। इट इज़ मेड ऑफ अ ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस and it is bulging outwards. The light coming from objects enters the eye through cornea. तो हमको तो ऐसा लगता है कि नहीं इसका कुछ कलर है, लेकिन इसका कुछ कलर नहीं होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, अच्छा अभी ट्रांसपेरेंट है तो फिर कलर किस चीज़ का होता है वो देखेंगे अभी। तो जो बाहर को उभरी हुई जो चीज़ होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, कॉर्निया बोल देते हैं। लाइट इसी से एंटर करती है हमारी आँख के। मोस्ट ऑफ द लाइट इज पास हमें और 2 मिनट रुक जाओ बस। उसके बाद हम कहते हैं जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस। जो कॉर्निया है ना, कॉर्निया हो गया हमारा ये फ्रंट वाला पोर्शन, इसके जस्ट पीछे ये आइरिस है, ये वाला, ये और ये आइरिस कहलाता है पोर्शन। अब देखिएगा, आइरिस इज अ फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन बिहाइंड कॉर्निया ऑफ द आई। तो देखिए हम जो साइड से आई को देख रहे हैं, आई का जो फिगर है वो साइड से देख रहे हैं, ये क्या है, ये और ये क्या है ना, ये पूरा का पूरा एक रिंग बना हुआ है एक्चुअली। तो जैसे किसी की भी आँखें ब्राउन कलर की हैं तो वो ब्राउन कलर जो है वो आइरिस की वजह से होता है। किसी भी आँखें ब्लैक कलर की हैं, ब्लू कलर की हैं, तो वो जो कलर होता है ना आई का, वो इस आइरिस की वजह से होता है। तो आइरिस जो है वो पूरा का पूरा एक रिंग होता है। ठीक है, अच्छा तो जो वो ब्लैक कलर हमको दिखाई दे रहा है वो ब्लैक कलर तो अंदर है, अगर आँखें ब्लैक कलर की हैं तो ब्लैक कलर तो अंदर है, और उसके बाहर एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है। वो जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है उसी को हम कॉर्निया बोल देते हैं। तो कॉर्निया से लाइट रे एंटर हुई, उसके बाद ये जो आइरिस है ये एक रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जो बीच का पोर्शन पूरा खुला हुआ दिखाई दे रहा है, ये प्यूपिल है। तो आंखें किसी की ब्राउन हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, किसी भी कलर की आंखें हो, लेकिन जो बीच का पोर्शन है ना प्यूपिल, इसमें किसी तरीके का कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता लाइट का, तो इसीलिए ब्लैक दिखाई देता है। जिस भी पोर्शन से रिफ्लेक्शन ना हो, जो लाइट रेज को पूरी तरीके से अब्जॉर्ब कर दे, उसका कलर ब्लैक होता है, वहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होकर नहीं है।
रिफ्लेक्ट बैक होगा मतलब टकरा कर वापस नहीं आएगी, तो लाइट रे सारी की सारी अंदर ही जाती है, तभी हम चीज़ों को देख पाते हैं। तो ये प्यूपिल हो गया। तो आइज़ का कलर कुछ भी हो, लेकिन सेंटर में जो बहुत छोटा सा होता है, ये जो बीच में हमको दिखाई दे रहा है ना, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है, ये तो आइरिस है। ये आइरिस ऊपर से ज़रा सी डंडी निकाल दी है, नीचे से एक छोटी सी अपने निकाल दी, ये दिखाने के लिए ऐसा दिख रहा है, लेकिन है क्या बेसिकली ये रिंग है पूरा का पूरा। ठीक है, आप ऐसा सोचिए कि अगर मान लीजिए कोई सर्कल है, तो सर्कल को अगर सामने से देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा, लेकिन सर्कल को ऐसे न रखकर अगर ऐसे कर देंगे तो सामने से तो एक लाइन ही दिखाई देगी, सामने से तो एक लाइन ही दिखाई देगी, उसको देख कर कह ही नहीं सकते कि सर्कल है। तो ऐसे ही ये एक लाइन इधर और एक लाइन इधर दिखाई देगी, ये रिंग है एक्चुअली। ठीक है, तो फ्रंट से देखेंगे तो पूरा रिंग दिखाई देगी। अच्छा, तो जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज द आइरिस। आइरिस इज अ फ्लैट कलर्ड रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन बिहाइंड द कॉर्निया ऑफ द आई। फिर देयर इज अ होल इन द मिडल ऑफ द आइरिस। आइरिस के बीच में एक होल होता है which is called pupil of the eye. The pupil appears black because no light is reflected from it. तो pupil में से कोई लाइट रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, इसलिए उसका कलर ब्लैक होता है। सारी लाइट को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, एब्जॉर्ब करने के बाद में लाइट कहाँ जाती है वो देखेंगे। The eye lens is a convex lens made of a transparent, soft and flexible material like a jelly made of proteins. ठीक है, तो ये तो भगवान ने बनाया है, वो हमको नहीं पता। तो ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल मटीरियल का बना हुआ है, होता है ये कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस जैसे अगर हम देखें तो वो तो कांच का बनाया जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो है ये ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है, सॉफ्ट होता है काफ़ी और फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल मतलब ऐसा जैसे आप ये देखिए, जो आपने चश्मा लगा रखा है, जो चश्मा लगा रखा है, इसमें क्या है कि ये इसकी जो पावर है वो फिक्स्ड है, लेकिन ये जो अंदर है ना, इसकी पावर फिक्स्ड नहीं है, इसकी पावर बार बार चेंज होती रहती है। तो ये अपनी ही तरीके का एक अनोखा लेंस है। लेंस में ऐसा होता है कि कॉन्वेक्स लेंस को अगर थोड़ा सा थिक कर दिया जाए, तो उसकी कन्वर्जिंग पावर थोड़ी बढ़ जाती है, मतलब ज़्यादा नज़दीक में वो चीज़ों को बनाने लगता है, इमेज बनाने लगता है। और अगर उसको थोड़ा सा खींच दिया जाए तो आप ये देखें, ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, आप ये नोटिस करें कि अगर मुझे कोई बहुत छोटी लिखी हुई चीज़ देखनी है तो मैं उसको नज़दीक लाता हूँ, तो आँखें अपने आप ही थोड़ी छोटी हो जाती हैं, मतलब हम अपने आप ही उसको फोकस करने की कोशिश करते हैं। वो काम कौन कर रहा है? वो सस्पेंसरी लिगामेंट कर रहा है। सस्पेंसरी लिगामेंट क्या कर रहा है? उसको और छोटा कर रहा है, और छोटा कर रहा है। तो सस्पेंसरी लिगामेंट अगर ऐसे खींचे रहती है, लेंस जो है ना, ये ऐसे दब रहा है, जब ये दब रहा है तो ये बीच में से थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, तो इमेज उसकी बहुत और ज़्यादा शार्प यहाँ पर रेटिना पर बनती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स होल्ड द आई लेंस इन इट्स पोजीशन, आई लेंस को फिक्स एक पोजीशन पे रखते हैं। ठीक है, अच्छा, वन एंड ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स इज अटैच्ड टू द आई लेंस। सस्पेंसरी लिगामेंट का एक हिस्सा वो आई लेंस से कनेक्टेड है, एंड देयर अदर एंड इज अटैच्ड टू सिलियरी मसल्स। तो दूसरा एंड है कि इस पर सिलियरी मसल्स पर अटैच्ड है। तो सिलियरी मसल्स हमारी यहाँ वाली मसल्स हैं, ये जो मसल्स हैं यही आंखों को छोटा है बड़ा करती है, और सिलियरी मसल से सस्पेंसरी लिगामेंट है अटैच्ड। तो वही चीज़ है कि अगर बहुत ज़्यादा लाइट रेज आ रही है जो आंखों के लिए हार्मफुल है, तो हमारी आँखें छोटी हो जाती है। ठीक है, सूरज की तरफ ज़्यादा देर तक देख नहीं पाते। ठीक, तो किसी को ज़बरदस्ती आँखें ख़राब ही करनी हो तो यूँ करके और देखना शुरू कर दो, उसकी तरफ की निगाह तो बंद ही नहीं होती, तो आँखें ख़राब नहीं होती। ठीक है, और इसी तरीके से अगर लाइट चली जाए, बंद कमरा बिल्कुल अंधेरा हो रखा हो, तो आँखें अपने आप ही बड़ी बड़ी हो जाती हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी आइज़ बड़ी बड़ी होकर और ज़्यादा कुछ देखने की कोशिश करती है, अंधेरा है दिखाई देता है। अच्छा, तो सिलियरी मसल्स चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस व्हाइल फोकसिंग। तो फोकस करते टाइम सिलियरी मसल्स ही जो हैं ये उसको आई लेंस को कभी थिक तो कभी थिन बनाते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? उसके बाद अब बात करते हैं रेटिना की। द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म्ड इन द आई लेंस इज कॉल्ड रेटिना। हमारी आई के अंदर एक स्क्रीन लगी रहती है यहाँ पीछे की तरफ, यहीं पर रेटिना होता है। ठीक है, इस स्क्रीन को ही रेटिना बोलते हैं, और इस स्क्रीन पर ही सारी इमेजेस बनती हैं, जो भी हम देख रहे हैं वो सारी इमेजेस इस पर बनती हैं। अच्छा, उसके बाद द रेटिना इज अ डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स कॉल्ड रॉड्स एंड कोन्स। तो रेटिना जो है, रेटिना एक डेलिकेट मेम्ब्रेन होता है। डेलिकेट मेम्ब्रेन मतलब बहुत नाजुक होता है, और रेटिना डैमेज हो जाता है तो फिर मतलब देख पाना किसी का भी मुश्किल हो जाता है कि अब उसको दिखाई नहीं देगा अगर रेटिना डैमेज हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आई का। और उसके अंदर लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, रॉड्स एंड कोन्स। तो रॉड्स और कोन्स अलग अलग तरीके के हैं। अब जैसे रॉड्स हैं,
तो रॉड्स वो वाले सेल्स हैं जो हमारी आंखों को इनेबल करते हैं कि अगर अंधेरा भी है तो अंधेरे के बावजूद भी हम थोड़ा बहुत कुछ देख पाएँ। अंधेरे में ऐसा थोड़ी है कि बिल्कुल अंधे ही हो जाते हैं। भाई अगर हम रोशनी से अंधेरे में चले गए, मान लीजिए किसी थिएटर में गए, तो थिएटर में गए तो तभी तो जाते ही तो ऐसे ऐसे हो जाता है, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता, ठीक है। कुछ सेकंड्स बाद हमको दिखने भी लगता है, ठीक है। तो जो हमारी आई है ये सीरियल मसल्स थोड़ा सा साइंस को इसको बढ़ा देती है, और हमारी जो आंखों की जो रेटिना है, रेटिना के अंदर रॉड सेल्स होते हैं, रॉड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो रॉड सेल्स कब काम करते हैं? जब हम अंधेरे में किसी चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जैसे नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, आउल जैसे उल्लू है, तो उल्लू की आंखों में ये जो रॉड सेल्स हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। तो अगर उल्लू को रात में देखोगे तो आप डर भी जाओगे, क्योंकि उसकी आंखों में चारों तरफ ऐसा लगता है तो छोटी छोटी LED लाइट जल रही है, ठीक है। बहुत छोटे छोटी लाइट सी जलती है उसकी आंखों में, चमकती है उसकी आंखें, तो वो रोशनी होती है, उस रोशनी से ही वो देख पाता है। दूसरे होते हैं कोन्स। कोन्स भी सेल्स होते हैं रेटिना के अंदर। कोन्स क्या काम करते हैं? हम अलग अलग रंगों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, नीला है, ये पीला है, ये लाल है, ये हरा है, तो रंगों को आइडेंटिफाई कर पाएँ तो वो कौन से सेल्स की हेल्प से होता है? कोन्स से होता है। उसके बाद देखिएगा, एट द जंक्शन ऑफ द ऑप्टिक नर्व एंड रेटिना देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स, रॉड्स एंड कोन्स। तो जहाँ पर रेटिना और ऑप्टिक नर्व मिलती है, जो जंक्शन होता है, वहाँ पर ना तो कोई रॉड सेल होता है, ना कोई कोन सेल होता है। तो इसका मतलब वहाँ पर हम किसी भी चीज़ को ना तो उसका कलर आइडेंटिफाई कर पाएंगे और ना ही उसको देख पाएंगे। इसीलिए इसको कहा जाता है ब्लाइंड स्पॉट, कि अगर इमेज यहाँ पर बन गई ब्लाइंड स्पॉट पर तो हमको दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो कौन सी चीज़ हमको दिखाई नहीं दे रही है? ये जो पर्दा है ना पीछे, इस पर्दे से लाइटें आ रही है, इधर उधर सब जगह से लाइटें आ रही है। जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे ये दिखाई नहीं दे रहे, है ना। हल्का फुल्का आइडिया है कि ये क्या कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली नहीं दिख रहा कि ये नोटबुक में क्या लिख रही है, ये नहीं पता, लेकिन हाँ दिख रहा है कि हाँ हाथ चल रहा है ना, हाँ यूँ कर रही है, तो ये दिखाई दे रहा है। तो एक आइडिया रहता है, क्योंकि इधर से भी लाइटें आ रही है, इधर से भी लाइटें आ रही है। लाइटें ये जो पीछे पर्दा है ना, लाइटें यहाँ से भी आ रही है, लेकिन वो जो लाइटें आ रही है उसकी इमेज मेरे ब्लाइंड स्पॉट पर बन रही है जाकर, इसलिए मैं उसको देख नहीं पाऊँ, ठीक है। ऐसा होता है। आगे चलते हैं। द स्पेस बिटवीन द कॉर्निया एंड आइलेंस। तो ये जो कॉर्निया है और ये जो आइलेंस है, इसके बीच का जो स्पेस है, इट इज फिल्ड विद अ वाटरी लिक्विड, फिल्ड विद अ वाटरी लिक्विड कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। ये क्या होता है? ये आंसू है, ठीक है। एक्वस ह्यूमर, ये आंसू है। अब इसको ह्यूमर क्यों कह रहे हैं? आंसू तो जब दुख होता है तभी निकलता है, ह्यूमर तो हंसी है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये ना एक पैरामीटर हो गया। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं ठंडक और गर्मी, इन ठंडक और गर्मी के लिए अगर एक ही यूनिट डिफाइन करी जाए, एक क्वांटिटी डिफाइन करी जाए, तो वो होती है टेम्परेचर। तो कोई कहता है एसी की ठंडक बढ़ा दो, कोई कहता है एसी की गर्मी बढ़ा दो, है ना। और सही शब्द जो है वो ये है कि भाई टेम्परेचर कम कर दो, ठंडक हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ा दो तो थोड़ी गर्मी हो जाएगी, ऐसा होता है, ठीक है। तो एक शब्द पकड़ लिया, वो शब्द क्या है? ह्यूमर, है ना। एक्वस क्यों है? एक्वस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू वाटर, और ह्यूमर, ह्यूमर का मतलब ये है, ह्यूमर की डिग्री अगर ज़्यादा है तो हंसी आ रही है, ह्यूमर की डिग्री अगर बहुत कम है तो रोना आ रहा है, ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर हो गया एक तरह से। टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो गर्मी है, टेम्परेचर अगर कम है तो ठंडक है। ह्यूमर अगर ज़्यादा है तो हंसी आ रही है, कॉमेडी फिल्म हो गई। ह्यूमर अगर कम है तो रोना धोना है, बहुत परेशानी हो रही है, फिल्म को देखकर दुखी हो रहे हैं, ठीक है। दुखी होते हैं तब भी आंसू निकलते हैं, खुश होते हैं तब भी आंसू निकलते हैं, होता है। तो ये वही चीज़ है एक्वस ह्यूमर। इससे क्या होता है कि जब आंसू निकलता है तो हमारे आंखों की जो क्या बताते हैं उसको, जो फ्लूइडिटी है ना, जो उसका चिकनापन है वो बना रहता है, वो बना रहता है। तो वो भी निकलना ज़रूरी है। कभी कभी आपने नोटिस करा होगा थ्रू आउट द डे, कभी कभी बिना मतलब ही पानी आ जाता है आपने, फिर आप ऐसे साफ करते हैं उसको, तो वो उसकी सफाई के लिए ही होता है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं स्पेस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना इज फिल्ड विद अ ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस और विट्रस ह्यूमर विच सपोर्ट्स द बैक ऑफ द आई। तो इसमें क्या होता है कि आई लेंस और रेटिना, इसके बीच का जो पोर्शन है, ये आई लेंस बड़ा लचीला है, बार बार इसको ऐसे 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 सीनियर मसल्स करती हैं। कभी मैं तुम्हें देख रहा हूँ, जब तुम्हें देख रहा हूँ तो कॉन्वेक्स लेंस जो थोड़ा थिक हो गया, जब तुम्हें देख रहा हूँ तो कॉन्वेक्स लेंस थोड़ा थिक हो गया। नज़दीक वाले को देखते हैं तो थोड़ा थिक हो जाता है, पास वाले को देखते हैं तो थोड़ा थिक हो जाता है। अब ये जो आई लेंस है और रेटिना है, ये बड़े डेलिकेट है। ऐसा ना हो कि हम दौड़ रहे हैं तो पता चला कि हमारा आई लेंस ही हिल रहा है, ठीक है। अब आई लेंस हिल रहा है तो हमें कभी कोई चीज़ आगे और कभी कोई चीज़ पीछे दिखाई दे रही है, ऐसा हो रहा है। तो क्या है कि वो भगवान ने ऐसी सेटिंग रखी है कि इसके बीच में विट्रस ह्यूमर नाम का एक फ्लूइड बन रखा है, जो कि
सेमी लिक्विड की फॉर्म में, मतलब जेली के जैसा है। तो वो उसको ना फिक्स करके रखता है, आई जहाँ पर है उसके सारे कंपोनेंट्स आपस में मिक्स ना हो, वो करके रखता है। ठीक है, तो ये आई का पूरा कंस्ट्रक्शन था। इसमें जो रेटिना है, रेटिना में एक चीज़ नोटिस करिएगा आप सभी बच्चे, द स्क्रीन ऑन विच इमेज इज फॉर्म इन द आई इज कॉल्ड रेटिना। स्क्रीन पर जो इमेज बनती है वो तो रियल और इन्वर्टेड होती है। रियल और इन्वर्टेड इमेज की डेफिनेशन ही है, एन इमेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो तुम्हारा तो सर नीचे और पैर ऊपर दिखाई देना चाहिए। एक्चुअली तुम सारे ही मेरे, तुम सबकी इमेज मेरी जो रेटिना पर बन रही है वो उल्टी ही बन रही है। मेरी इमेज आपके रेटिना पर जो बन रही है वो उल्टी बन रही है। तो रेटिना पर जो इमेज बनती है ना वो उल्टी ही बनती है, वो ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड है। ऑप्टिक नर्व का ये काम है कि उस उल्टी को सीधा करे, और ये धीरे धीरे ना डेवलप होता है। जब बच्चा पैदा होता है ना उसको सब कुछ उल्टा ही उल्टा दिखाई देता है, उसके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं। तो जब पैदा होता है तो वह ऐसे ऐसे देखते ही रहते हैं इधर उधर, कुछ रिएक्शन नहीं। फिर उसके बाद धीरे धीरे 2, 4, 5 या 6 महीने जब हो जाते हैं तब उसको देखते हैं, अच्छा ये है, ये है, हाँ ये प्राणी कभी कभी दिखाई देता है, ये हरदम दिखाई देता है ना। तो ऐसे उसको धीरे धीरे वो आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। तो ऐसा होता है कि रेटिना पर हमेशा याद रखिएगा, इमेज फॉर्म ऑफ द रेटिना इज रियल एंड इन्वर्टेड, तो वो हमेशा उल्टी ही बनती है। ये तो हमारी ऑप्टिक नर्व है जो उसको सीधा करके इंटरप्रेट करती है। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, बच्चा 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, तो उसको धीरे धीरे वो चीज़ अच्छे से समझ में आने लगती है और चीज़ें सीधी ही दिखने लगती है। ठीक है, तो ये आज था पूरा, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और कल ना मैथ्स कराऊंगा शाम को, क्या बोला था, 5 बजे 5 बजे